हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 8, लूपिंग इन पाइथन। So far we have learned about the conditional control structures, if, else, nested if in Python. Now in this chapter we will learn about loops. Python provides different types of loops to handle looping requirements. While all the ways provide similar basic functionality, they differ in their syntax and condition checking time. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? पाइथन में जो लूप्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो लूप्स क्या होते हैं? इन प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर्स डू नॉट पर्टिकुलरली लाइक रिपीटिंग द सेम कमांड्स, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव लूप ऑप्शन इन दैट केस। तो प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो एक ही कमांड को बार बार नहीं लिखते हैं, वो लूप का यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। Loop causes a section of our program to be repeated a certain number of times. The repetition continues while a condition is true. When the condition becomes false, the loop ends and the control passes to the statement following the loop. तो जो लूप होता है उसमें क्या होता है, जो कंडीशन होती है वो बार बार रिपीट होती जाती है जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है। बट जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जो लूप होता है वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है और एंड हो जाता है। In looping, a sequence of statements is executed until some condition for a termination of the loop is satisfied. A program loop therefore consists of two segments. Loop में दो segment होते हैं. First is one known by body of the loop. एक को हम क्या कहते हैं? Body कहते हैं loop की, और the other one is known as the control statement. The control statement tests certain condition and then directs the repeated execution of the statement contained in the body of the loop. If we want to print the same text thrice, normally we will code it thrice. Now suppose we have been asked to print the statement 100 times. What would be done? Writing the same code again and again would be more tedious and time consuming. Here comes the loop एज अ सेवियर। किसी भी स्टेटमेंट को 100 टाइम्स हमें लिखवाना है, 100 टाइम्स रिपीट करवाना है, तो जो प्रोग्रामर होगा वो 100 टाइम्स कोड ना लिख के एक लूप का यूज करेगा जो कि उसे 100 टाइम खुद रिपीट करवाएगा। अब दो टाइप के लूप्स होते हैं। पहला आता है काउंटर लूप, फॉर लूप एंड फॉर एल्स लूप। इसमें क्या क्या आते हैं? फॉर लूप आता है और फॉर एल्स लूप आता है। सेकेंड है कंडीशनल लूप, इसमें वाइल लूप होते हैं और वाइल एल्स लूप होते हैं। काउंटर लूप पढ़ेंगे हम। The for loop is used to repeat a block of statements until there is no item in any. The for loop is used to repeat a block of statements until there is no item in any sequence. This statement iterates over the items of any sequence, a list or a string, in the order that they appear in the sequence. Loop continues until we reach the last item in the sequence. The body of the loop is separated from the rest of the code using identity. तो for loop में जो हमारी block of statements होती हैं वो तब तक repeat होती है जब तक उसमें कोई भी उसके sequence में कोई भी item ना आ जाए। Let us take a real life example. Suppose we need to print 5 pages from the printer. In this case, printing task is same for all 5 pages. तो अगर हमें 5 पेजेस को प्रिंट आउट करना है जिसमें पांचों पेज जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, तो हम क्या करेंगे? सो वी सेट द कंडीशन इन लूप। जो कंडीशन है हम वो लूप में सेट कर देंगे। प्रिंट द पेजेस टिल 5th पेज इज प्रिंटेड। एज पर कंडीशन प्रिंटर prints the page up to the 5th page. तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो प्रिंटर होगा वो उसे 5 पेजेस तक प्रिंट कर देगा। When it reaches up to the 6th page, it will stop the printing. तो जब वो 6th पेज पे पहुंचेगा प्रिंटर तो वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। अब आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल आर टर्म्ड एज सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है? ये कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का। इसमें क्या क्या आता है? स्ट्रिंग आती है, लिस्ट आता है और टपल आता है।
इन ऑपरेटर क्या होता है? इट इज यूज टू चेक एग्जिस्टेंस ऑफ वैल्यू इन अ सीक्वेंस। इन ऑपरेटर क्या होता है? इट इज यूज टू चेक existence of value in a sequence. If it finds the value in a sequence, it evaluates true, otherwise false. तो इन ऑपरेटर में क्या होता है? ये वैल्यू को चेक करता है सीक्वेंस में, अगर वो होती है तो वो इवेल्युएट हो जाता है ट्रू में, अदरवाइज वो क्या हो जाता है? फॉल्स। प्रोग्राम 1 print all the letters of cobot. When the above program is executed, X variable holds the first letter of cobot and in operator will check the existence of letter in sequence string. If it exists, the loop body will be executed and the first letter C will be printed. Now, second time when X holds the second letter of cobot, in operator will again check the existence of letter in sequence string. If it exists, the loop body will be executed and the second letter O will be printed. This process will continue to print the letters of the word cobot till X reaches up to the last letter. तो इसमें क्या होगा? जो X वेरिएबल होगा सबसे पहले, तो जो X वेरिएबल होगा वो सबसे पहले कोबॉट वर्ड का फर्स्ट लेटर को होल्ड करेगा और जो इन ऑपरेटर होगा वो क्या चेक करेगा? एग्जिस्टेंस ऑफ द लेटर इन सीक्वेंस। तो अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो लेटर सी प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज वो वहीं पे एंड हो जाएगा। सिमिलरली हर लेटर के लिए ये ही फॉर्मेट होगा। अब आता है रेंज। रेंज इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ पाइथन। ये क्या है? एक प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन का। द फंक्शन इज यूज व्हेन वी नीड टू परफॉर्म एन एक्शन फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। ये फंक्शन तब यूज होता है जब हमें कोई भी टास्क, कोई भी एक्शन एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए परफॉर्म करना होता है। इट रिटर्न्स द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये हमें सीक्वेंस ऑफ नंबर रिटर्न करता है। द रेंज फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 पैरामीटर्स। में 3 पैरामीटर होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप्स। स्टार्ट एंड स्टेप्स आर ऑप्शनल and are used for specific cases, but stop parameter is mandatory as it is used to define the final product of the sequence. तो रेंज में 3 चीजें होती हैं, स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है और क्या होता है? स्टेप्स होता है। तो जो स्टार्ट और स्टेप्स होते हैं वो ऑप्शनल होता है, अगर आप वो ना भी दें तो चलता है, बट जो एंड होता है वो आपको बताना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो हमारा फाइनल पॉइंट होता है। यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल आता है। Normal coding style takes more time and space to type the repetitive code and it has more chance of error in writing the program. Using the loop, we can see the lines of code reduce. Due to the short code, it takes less time to type the code, which saves overall time and also makes the program error free. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है रिपीटिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे रेंज 5 दी हुई है, तो इसने ऑटोमेटिकली खुद ही बाय डिफॉल्ट जो पहले 5 नंबर है उसको प्रिंट कर दिया, विच इज 0 1 2 3 4 1 दी हुई है। जब हमने रेंज दी हुई है जिसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, एंडिंग पॉइंट हमारा 10 है और जो स्टेप्स है वो हमारे 2 है, तो इसने क्या प्रिंट करा है? 1 से स्टार्ट करके 2 के गैप पे जो नंबर्स हैं वो प्रिंट करे हैं, जैसे कि 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। नॉर्मली जो कोडिंग स्टाइल होती है वो ज्यादा टाइम लेती है और स्पेस लेती है क्योंकि उसमें रिपीटेटिव कोड्स आते हैं, पर लूप का यूज करके हम अपने कोड को शॉर्ट कर सकते हैं, जिससे जो हमारा टाइम है वो भी बचेगा और जो प्रोग्राम होगा वो मोर एरर फ्री होगा, उसमें एरर्स जो होंगे वो कम होंगे। अब आता है प्रोग्राम 2, प्रिंट ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 to 10। अगर आपको 1 से अगर आपको 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हो तो इन द अबव प्रोग्राम रेंज फंक्शन हैज 2 पैरामीटर्स, स्टार्ट, स्टॉप। सो इन द अबव प्रोग्राम, आप ऊपर प्रोग्राम में देख सकते हैं जो रेंज फंक्शन है उसमें 2 पैरामीटर्स यूज करे हुए हैं, जिसमें स्टार्ट उन्होंने 1 से किया है और स्टॉप किया है 11 पे, और यहाँ पे कोई स्टेप्स नहीं दिए हुए, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी वैल्यूज होंगी वो सारी प्रिंट हो जाएगी 1 से 11 तक। तो यहाँ पे कोई भी स्टेप नहीं गिवन है, तो जो हमारी वैल्यूज होंगी बाय डिफॉल्ट 1 से 10 तक सारी प्रिंट हो जाएगी।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब आता है काउंटर लूप फॉर एल्स लूप। ये क्या होता है? व्हेन वी यूज एल्स विथ फॉर लूप, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉर एल्स लूप। तो जब हम फॉर लूप के साथ एल्स यूज करते हैं, वो क्या हो जाता है? फॉर एल्स लूप। द एल्स क्लॉज ऑफ अ लूप गेट्स एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द लूप completes its execution normally without having encountered with break statement। तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसे होता है, फॉर where इन सीक्वेंस, जिसमें हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, एल्स स्टेटमेंट्स, मतलब अगर ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही होती है तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट्स प्रिंट होती है। अदरवाइज अगर हमारी वो ऊपर वाली स्टेटमेंट फॉल्स होती है तो हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट प्रिंट होती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आता है, प्रिंट द मैसेज प्रिंट डन आफ्टर प्रिंटर प्रिंट्स 5 पेजेस। तो जब प्रिंटर 5 पेजेस को प्रिंट कर दे तो एक मैसेज प्रिंट करवाना है, विच इज प्रिंट डन। When the above program executes, the loop statement will execute 5 times। तो ये जो प्रोग्राम है, सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसको 5 टाइम प्रिंट करेगा, और जैसे ही वो रेंज 6 पे आएगी, जो एल्स का मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब आता है कंडीशनल लूप विच इज while loop। The while loop in Python is used to repeat a block of statements for given number of times until the given condition is false। तो while loop में क्या होता है, जो statements होती हैं वो repeatedly execute होती जाती हैं जब तक जो हमारी condition है वो false ना हो जाए। It starts with the condition. If the condition is true, then statements inside the while loop will be executed. Otherwise, if the condition is false, then it will not be executed for at least once. It means while loop may execute 0 or more time। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फ्लो चार्ट में, ये हमारी while कंडीशन है। अगर ये ट्रू है तो ये हमारी while कंडीशन है। अगर ये ट्रू होगी तो हमारी while लूप की बॉडी प्रिंट होगी। अदरवाइज ये अगर फॉल्स होगी तो जो ये लूप है एग्जिट हो जाएगा। सपोज वी नीड टू प्रिंट पेजेस फ्रॉम प्रिंटर अंटिल द प्रिंटर ट्रे गेट्स एम्प्टी। In this case, we do not know the exact number of papers in tray, but we know a condition till the tray gets empty. So the printer checks the availability of pages each time it begins to print and stops at the unavailability। तो अगर हम एक प्रिंटर को बोले कि उसे तब तक प्रिंट करना है जब तक उसके जो पेजेस हैं वो खत्म ना हो जाए, तो वो प्रिंटर जो होगा प्रिंट करता जाएगा, बट जैसे ही पेजेस खत्म होंगे वो प्रिंट करना बंद कर देगा। While loop is also known as entry control loop। इसको हम एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम 4 है, print the pages until the user enters stop। In this program, ANS variable is initialized to start, so loop condition is true and it will enter the loop and execute the statement. This process executes the loop statement until users types the word stop। Once the users type it, the loop gets terminated। Print the sum of series from 1 to 5। Program 5, print the sum of series from 1 to 5। In this program, the variables num and sum are initialized to 1 and 0. The loop condition evaluates to true as num is less than equal to 5, and it will enter to the loop and store the value 1 in some variable। Next, the value of num will be incremented by 1 and now set to 2. The programmer's control moves to while loop, and again the value of num is checked against condition, that is num less than 5. As it is still satisfying the condition, so it will lead to execution of statements inside the loop body, and the process would be repeated until the condition evaluates to false, such as when the value of num is exceeds 5। तो इसमें जो नंबर्स हैं वो प्रिंट होते जाएंगे। कब तक प्रिंट होंगे? जब तक हमारा जो नंबर है 5 से
बड़ा ना हो। अब आता है कंडीशनल लूप विच इज व्हाइल एल्स लूप। तो इसमें क्या होता है, व्हेन वी यूज एल्स विद अ व्हाइल लूप, दिस स्ट्रक्चर नोन एज व्हाइल एल्स लूप। तो जब एल्स को हम व्हाइल लूप के साथ यूज करते हैं वो एक व्हाइल एल्स लूप होता है। यूजिंग दिस लूप वी कैन रन एन इंस्ट्रक्शन कोड व्हेन द कंपेयरिंग वैल्यूज रीचेस टू एक्सीड लिमिट ऑफ कंडीशन वैल्यू। तो इसका फ्लो चार्ट कुछ ऐसे है कि अगर ये व्हाइल कंडीशन है तो ये जब तक ट्रू होगी तो व्हाइल लूप की बॉडी प्रिंट होगी, जब ये फॉल्स हो जाएगी तो एल्स की बॉडी प्रिंट होगी। अब यहाँ एक प्रोग्राम है, प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स अंटिल इट बिकम्स लेस देन 0। In this program, value variable is initialized to 5, so loop condition is true and it will enter the loop and print number 5. Next, the value will be decremented by 1. Again, condition will be tested and it will evaluates to true. So, it will enter to the loop and prints number 4. This process executes the loop statement until value becomes less than 0. Once values become less than 0, the loop gets terminated and else statement gets executed. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से एक बार ट्राई करना। अब आता है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू अनकंडीशनली जंप आउट ऑफ द लूप. It terminates the execution of the loop. We can use it in while loop and for loop. Break is mostly required when due to some external condition we need to exit from a loop. तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? जब हमें किसी भी लूप से, चाहे वो फॉर लूप हो या वाइल लूप हो, हमें उससे बाहर आना हो बीच में ही, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके उससे बाहर आ सकते हैं। एग्जिट द लूप व्हेन नम इज इक्वल टू 4। तो इसमें क्या करना है, लूप से एग्जिट कर जाना है जब हमारा नंबर जो है 4 के इक्वल आ जाए। In the execution of this program, the loop terminates when the value of num becomes 4. अब आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है? ये तब यूज होती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेल द प्रोग्राम टू स्किप द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट इटरेशन ऑफ लूप ब्लॉक and move to next iteration of the loop. Loop does not terminate but continues on with the next iteration. This can also be used with both while and for loop. तो जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है वो भी while और for दोनों लूप्स के साथ यूज की जा सकती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है वो भी while और for दोनों लूप्स के साथ यूज होती है। तो इसमें क्या होता है, जब एक प्रोग्राम में लूप होता है और उसको बोला जाता है कि बाकी भी बची हुई जो स्टेटमेंट्स है उनको छोड़कर दूसरे लूप पे शिफ्ट हो जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे प्रोग्राम है प्रिंट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 6 एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ 3। इसमें सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है, सिर्फ वैल्यू 3 को प्रिंट नहीं करना। अब यहाँ पे बच्चों चैप्टर की समरी है, इसे आप खुद से पढ़ना, आपका पूरा चैप्टर जो है रिवाइज हो जाएगा। और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग।